he's devoted his time to social causes and religious causes. He's into teaching Jainism, he's promoting veganism and lot of different causes at a pan-India level. And he's also, working with the community outside of India as well. Nice, nice. Very happy to meet you, sir. Thank you, Rashmi. So we'll just wait for 1 more minute. Now it is 11, Sure. so we'll start at sharp 11 and people can join. So we'll start with our prayer. Sandeep, if you can play Navkar Mantra. So Navkar Mantra is our prayer, Dr. Rashmi, if you've not heard that before. Okay, yeah. Thank you. Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र एवरीवन। अप्लाइड जैनिज्म के 40वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप में से एटलीस्ट कुछ लोग जानते रहेंगे कि हम हर महीने एक सेशन ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी सेशन का मूल उद्देश्य यह रहता है कि हम अपने सिद्धांत जियो और जीने दो को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। और इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाइंग लाइफ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट आज के समय में ये सिंपल टॉपिक को लेने के लिए इतनी जरूरत हो गई है क्योंकि हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और हमारी लाइफ देखा जाए तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड एट मल्टीपल लेवल्स। अब जैसे स्टार्टिंग से देखें, जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो what they get introduced to before they get introduced to natural food like fruits or dal ka pani वगैरह, they get introduced to a processed food called Cerelac or something similar. Okay, उसके बाद में बच्चे जब थोड़ा बोलना सीखते हैं तो अपने रिलेटिव्स के नाम जानने से पहले उनको एवेंजर्स के कैरेक्टर्स के नाम पता चल जाते हैं। और थोड़ा बड़ा होते हैं तो लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। अपोलो हॉस्पिटल ने रिसेंटली रिसर्च किया एंड दैट रिसर्च शोज the percentage of lifestyle diseases amongst our kids is more than double or more than triple what it used to be just a few years ago. I mean, a decade के पहले की भी बात नहीं है, comparison is just a few years ago. So बच्चों की life, whether it is academic pressure, whether it is peer pressure, whether it is social pressure या family pressure, इतनी ज्यादा complicate हो गई है और सब चीजें भी कॉम्प्लिकेट हो गई है, राइट। हमारे बच्चे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन बी बोथ अ boon and a bane, they spend more time playing cricket on a phone versus playing cricket on the ground. खाने की वैरायटी आज, I mean recently I just went to a dosa shop
and that had 100 types of dosa. A simple food which is supposed to be healthy, but 100 types of dosas, चाहे पनीर टिक्का डोसा ले लो या मेक्सिकन डोसा ले लो या पाव भाजी डोसा या चाइनीज, it we are spoiled for choices and that creates confusion. And not just confusion at individual level in terms of deciding, but also create confusion in terms of what is healthier and what is not healthy, right? With these kind of choices that are available in our life and what is happening in and around. So the result of all of this is a complicated life for ourselves. Majority of the people, the percentage of people suffering from lifestyle diseases, a report by Indian Council of Medical Research, I think, which is again quite dated, not really recent report, but dated report बताता है कि 35% लोगों को hypertension है, 28% लोगों को डायबिटीज है, 10% से ज्यादा लोगों को ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीजेस हैं, एंड देन देयर आर मेनी मोर. सो बट आयरनी देखो, नाम बताता है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, तो हमें नाम से ही पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, बट फिर भी अवेयरनेस इतना कम है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल और व्हाट स्मॉल चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड इन आवर लाइफस्टाइल to reverse these diseases. So many of these diseases, research is suggesting that these can be reversed provided we make changes in the lifestyle. These are called itself as lifestyle. These are not communicable diseases. So चाहे वो हमारे excessive consumption या wrong consumption of food related हो, या sedentary lifestyle की वजह से हो, या stress and anxiety. So these are all things that have complicated not just our lifestyle, but lifestyle of all the other living beings in and around human beings. So we thought that it is important in this complicated world to learn from experts as to how we can simplify our life. So with this, we invited today Dr. Rashmi Menon, जो कि एक registered doctor है, साथ में वो एक holistic health के भी true advocate हैं. उनका क्लेम टू फेम इज बिना दवाइयों के इलाज करना, और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस को कैसे रिवर्स किया जाए उसमें वो स्पेशलाइज करती हैं. अपने पेशेंट्स को उन्होंने डायबिटीज, कैंसर, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस को दूर करने में मदद की है. उनकी प्रैक्टिस is obviously basis her education. She is a registered doctor, but it's not just basis her education, but it also basis her experience. व्यक्तिगत लेवल पे she was suffering from osteoporosis, asthma, endometriosis and obesity. So उन्होंने ये सारी चीजों को जो लाइफस्टाइल के बारे में जो आज बताने वाली है उनसे किस तरह रिवर्स किया. She reversed all of these. She also lost 18 kg of weight, I mean, through this process. So she will talk about her own personal experience, but will also tell us, I mean, how we can simplify our lives in this complicated world. So with this, I would like to invite our mentor, Dr. Bipin Doshi, to say a few words, and then we'll hand it over to you, Dr. Rashmi. Thank you, Sangeeta, for continuous efforts which you are making for applied Jainism. And also welcome, Dr. Rashmi. I'm 75 years of age. I do a lot of activities, and as Sangeeta has rightly mentioned, I have complicated my life. Just want to learn that how to simplify my life. And it's not that it gets complicated, it's that we make it complicated. So yes, definitely look forward to your wisdom to understand, how senior people like us should make our life more simplified. Thank you, Rashmi. Thank you so much, Sangeeta. Thank you so much, Doctor. And thank you to Ruchika for inviting me to give this talk. And I'm really touched by the work that you all are doing, reaching out to so many people. And it's my honor to be here today to give this talk. My talk is very simple, but in today's world, it does get a bit complicated. And most of whatever I'm going to share is not just what I have learned, it is more what I have experienced. So I'll just start my screen sharing.
So I started off by giving the talks in the name of Simplifying Health. This is, of course, about my journey, about what I have done with my own health. As Sangeeta had just said, I am a registered doctor in the field of homeopathy. And I have done post-graduation certification in psychotherapy, clinical hypnotherapy, advanced yoga, naturopathy, and sound medicine. And then I did certifications, 2 or 3 certifications in plant-based food, in nutrition. So that is my qualification, but that's not as important as my journey. So it's a short introduction to my journey. Before that, I would want you this to be an interactive session, whoever is attending on the Zoom. There is this chat box, and I would want you to type in, what do you think is health for you? I'll just give half a minute. What is health according to you? Thank you for sharing. Free of disease. Yes, this is one of the best things. Health is happiness, free of medicines, well-being of body and mind. Superb. Sukh, yes. It's so important to be healthy, happy to be healthy, right? So yes, this is one of the primary things about health, that it is not just about your body. It has got a lot to do with the life that you're living, because health is a combination of all of these aspects. It's basically being comfortable in your body. It's not just the absence of disease, it's about the comfort that you have every moment of your life. So aspects of health, as we know it in a holistic state, would involve all these 3 aspects: the spiritual aspect, the physical aspect, and the mental aspect. Yes, the mental and spiritual are different, simply because spiritual is a sense of higher purpose, happiness, while the mental is basically the emotional part of it, stress management, support system, what you have. And physical, of course, involves the body. So the body, there are 2 aspects to the body. One is what you're consuming, and the second is what you're doing with your body in the term form of exercise. Why is the body important? Because body is the vehicle in which we are traveling this earth, So connection with the spirit or the higher reality of life can happen only as long as we are still inside this body right now. And the driver of this body and the spiritual connections is, of course, our mind. So that's why all the 3 are important if we have to have comfort in day-to-day existence in every part of every moment of our life, so as to say. So this is me in 2009. I was around in my mid-30s. And although I had I belonged to a non-vegetarian family, by the way. And at the age of 3, I stopped eating animals because I would play with the animals. And whenever I would go to my grandparents' house where they had a proper farm, I would play around with the animals. They were my friends. I would name them. And then there would be a feast in the evening that would happen very, very occasionally, not like how it is these days. And the next day, which is made of meat, and the next day I would go hunting for my friends, and I would find some of them missing. And one of my cousins told me that this person that you're searching for is in your tummy. You ate him last evening. That struck the 3-year-old me. And that's when I decided that I will not be eating any kind of non-vegetarian food or meat or fish. But I would still continue eating eggs, because when I was small, the hens used to give their eggs in my hand. It is now that I realize that they trusted me to take care of their offspring. But for that, at that point in time, I thought that they are gifting it to me. They're giving it to me for me to use. And now I realize what wrong I was doing to them, because they were trusting me and I was actually using it. I was actually killing their offspring. But this realization occurred at the age of 18 when I first attended Vipassana at Igatpuri.
that was a shift in my connection with how I lived my life, with the connection with how I ate my food and connected with my food. That's when the eggs dropped off. That's when this realization came in. But I was having milk and dairy products and everything. And this was me at the age of 33. I was suffering from osteomalacia, which is the start of osteoporosis. I had endometriosis, I had asthma, I used to have recurring Dr. stomach. Rashmi, Yes, just wanted to remind you about the language. language, sorry. No issues, but yeah, if you can. हाँ, तो ये थी मैं जब मैं 33 साल की थी और ये सब इश्यूज मेरे में थे। और तभी मैं होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी करती थी। मेरे मेंटोर्स भी थे जो मुझे हेल्प करते थे, कभी ज्यादा एलोपैथी लिया नहीं, मगर क्योंकि बोन का इशू था तो मैं बहुत सारे डेयरी कंज्यूम करती थी, बहुत सारा दूध के पदार्थ कंज्यूम करती थी और ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन भी लिया हुआ था। तो मगर काफी फर्क नहीं पड़ा था। दैट इज तभी मुझे लगा कि मैंने कुछ और करना है। एंड देन उस वक्त मैंने साइकोथेरेपी का कोर्सेज करना शुरू कर दिया। एंड स्लोली स्लोली मैंने अपने लाइफ को बदल दिया, लाइफस्टाइल को देख के उसको, मेडिसिन पे डिपेंडेंसी छोड़ के लाइफस्टाइल को देखने लगी मैं। एंड दिस इज मी ओवर द इयर्स। बाय 2013 मेरे 18 किलोज कम हुए थे, जहां मैं खड़ी नहीं रह सकती थी आधा घंटा। आई वॉज रनिंग मैराथन्स में, ट्रैकिंग पे जा रही थी और वो कंटिन्यू रहा मेरा हेल्थ का सिचुएशन। एंड ओके, दिस इज मी लास्ट ईयर। आई डिड एन एडवांस योगा कोर्स एंड मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुआ और अभी मैं 50 ईयर्स की हूँ और मेरा फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी उतना ही है। मैं अभी भी 10 फ्लोर्स ऊपर चढ़ सकती हूँ। एकदम मेरा हेल्थ जो हो सकता है वो कंडीशन में है। तो जब मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा एडवाइस करती हूँ। तो क्या है मेरा लर्निंग? मेरा ये लर्निंग है कि हम जो हमारे लाइफ हमने बनाया हुआ है, ये होना चाहिए था। जो आप ये डायग्राम देख रहे थे, मदर नेचर इज माय बिगेस्ट टीचर। अगर मदर नेचर के हिसाब से हम चलते, इकोलॉजी के हिसाब से चलते, सारे प्राणी इस दुनिया में इक्वल हैं, सबको अपना जीने का हक है और हम उनमें से एक हैं। लेकिन जो दुनिया इंसानों ने बनाई है अभी फिलहाल, उसमें हम इस तरह से रहते हैं। हमने अपने आप को सबसे ऊपर डाल दिया है, जो ईगो स्टेट से आता है, और बाकी सब नीचे रह गए और हम उनको यूज करने लगे। और वो यूसेज में क्या हुआ कि उनका तो नुकसान हुआ ही, बट व्हाट हैज हैपेंड इज हम अपने आप को भी खो चुके उसमें। हम अपने अंदर से जो हमारा इनर बीइंग है, इनर सेल्फ है, इंट्यूशन है, उसको हम अभी कंप्लीटली खो चुके हैं, जिसकी वजह से हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने शरीर पर। ये बायो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये इंस्टिंक्ट होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं इमीडिएटली हमको समझ में आना चाहिए, लेकिन हम अभी समझ नहीं पाते क्योंकि हमने अपने ईगो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। तो हमने पहले जब हमारा हेल्थ बिगड़ने लगा, व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग ऑफ द पाथ, यूजिंग एनिमल्स, यूजिंग रिसोर्सेज जस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारा हेल्थ में प्रॉब्लम होने लगे। तो हमने क्या किया? वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, यूजिंग अल्कलाइन वाटर, कोलन थेरेपी, कलर थेरेपी। मैंने ये सब किया हुआ है। आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ दिस। just share in the chat box if any of you have explored all of this। इनमें से कुछ भी आपने किया हुआ है? क्रिस्टल्स देखा है, अमोनिया फ्री डाइट, जो कलर थेरेपी है, ओजोन थेरेपी है, प्लांट्स डालना ताकि अच्छा ऑक्सीजन मिले, एंड ऑफ कोर्स एलोपैथी है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड फार्मेसी वगैरह है। हमने एक तरह से अपना हेल्थ जो है आउटसोर्स कर दिया इन सब चीजों से, जिससे क्या हुआ कि हमारा अटेंशन अंदर से बाहर की तरफ चला गया। So what happened is हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी बायस आ गया। हम जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारा सोचना पड़ता है, बहुत सारा गिनती करना पड़ता है, बहुत सारा मैथमेटिक्स करना पड़ता है, हमको ऐसे लगने लगा कि ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो हमारे अंदर से सिंपल फीलिंग्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा दिमाग जो बोल रहा है कि अच्छा अच्छा ये डेटा है, ये बता रहा है कि ये हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है।
हम समझने लगे कि अच्छा मैग्नीशियम इतना हमारे शरीर के लिए होना चाहिए, तो फिर हम वो मैग्नीशियम वाले कैप्सूल्स खाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो खाने के बाद हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमारे लाइफ के सभी एरियाज में हम कॉम्प्लेक्स होने लगे। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को वर्च्यू माना, सोचा कि वही अच्छा है, सिंपल चीजें जो है बेकार है। हम अभी भी हमारे वर्क जब बात भी करते हैं, जो गांव के लोग जो सिंपल हैं उनको हम सिटी के शहरों के लोगों से कम समझते हैं। ये एक बायस होने लगा हमारे दिमाग में। तो ना ही हम अपने जानवरों को हमसे छोटा समझने लगे हैं, जो चीजें सिंपल हैं उसको भी हम अपने आप से छोटा समझने लगे, जिसकी वजह से नुकसान सबसे ज्यादा हमारा हुआ है। तो अगर हमको हेल्दी बनना है, हमने ये जो पाथ हम चल चुके हैं उससे रिवर्स आना है, तभी हमारे डिसीजेस रिवर्स होंगे, हमारा मेंटल कंडीशन जिसमें हम फंसे हुए हैं वो रिवर्स होने के चांसेस हैं। दैट इज आवर ओनली सेवियर। बाहर से कोई सेवियर नहीं है, हम ही हैं, और हमको ही करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम ही ने क्रिएट किए हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कहाँ पर है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बायस। ये जो है इंसान ही है जो इतना सारा सोच के प्रेजेंट में नहीं रहता, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वही है जो सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिसीज से सफर करता है। If you look at animals, only the domesticated animals suffer from lifestyle diseases. Wild animals कभी lifestyle disease से सफर नहीं करते। उनको क्या होता है, इंजुरीज होते हैं या फाइट्स की वजह से या गिरने के वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर लाइफ गोज either due to injuries that are accident related or due to old age. इंसान ही ऐसा प्राणी है जो लाइफस्टाइल डिसीजेस से मरता है। Right now, we are going through a pandemic of lifestyle diseases, and that is coming because of us not being connected with ourselves. इतने दूर जा चुके हैं हम, लेकिन वरी नॉट, हम वापस आ सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो। और हमारा शरीर और मन ऐसा स्ट्रांग है कि अगर हमने 50% भी स्टेप्स पीछे ले लिए, या इवन 50% छोड़ो, 20% भी अगर हम इस तरफ से चलने लगे, नेचर के हिसाब से चलने लगे, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आने लगता है। सो complexity is impressive, but simplicity, that is the true genius. That's a very interesting quote that I heard and I wanted to share with all of you. So when we are saying that we want to simplify our life, इसके 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा और हैं, आप खुद भी जान सकते हैं, क्योंकि फाइनली सबसे बेस्ट डॉक्टर आपके लिए आप खुद हो। मैं अपने हिसाब से ये शेयर कर रही हूँ कि ये 4 पार्ट्स हैं जो हम आज कम से कम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है नरिशमेंट। हम अपने शरीर को क्या खाना दे रहे हैं, कैसे उसको नरिश कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है मूवमेंट, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो मूवमेंट के लिए ही बना हुआ है ना। और तीसरा है, जैसे आप लोगों ने सबने चैट में लिखा, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। और वो कंटेंटमेंट का एक मेजर पॉइंट है कनेक्शन। हम जो है इंटरकनेक्टेड है, ना सिर्फ अपने आप से, ये जो वर्ल्ड है, अर्थ है, इसके सब प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, पानी का जरिया हो या हिल्स एंड वैलीज, इससे सब हम कनेक्टेड हैं। जो एक तरफ हो रहा है, अगर वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंसान या वो लोग, वहां के लोग हैं वो इफेक्टेड हैं, हम भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा खाना, हवा, पानी सब उस तरीके से आता है। सो वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड, सो कनेक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये 4 पार्ट है जो हम ब्रीफ में आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है नरिशमेंट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, अब जैसे हम जब भी पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे तो सिर्फ गुलाब जामुन खाने का मन करता है, मुझे तो सिर्फ अंडे खाने का मन करता है, चिकन खाने का मन करता है ना। तो हम ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे चिकन खाना है। लेकिन अगर हमको एक्चुअली नेचुरल इंस्टिंक्ट समझना है, हमने वो प्रिपेयर्ड चीज को नहीं देखना है।
हमने वो देखना है कि ये कहाँ से आया, उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है। और वो ओरिजिनल फॉर्म अगर मेरे सामने हो, क्या मेरे मुंह में पानी आएगा? क्या मैं वो ओरिजिनल चीज जो है उसको प्रोक्योर कर सकती हूँ, उसको पकड़ के खा सकती हूँ? क्या मैं उसके अंदर बाइट कर सकती हूँ? दीज आर द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। जो प्रिपेयर्ड स्टफ है, दैट इज नॉट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो हिप्नोटाइज्ड है। वो जो खाना है वो हमको हिप्नोटाइज कर चुका है। तो अगर आपको नेचुरल इंस्टिंक्ट से रिकनेक्ट करना है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि 2 मिनट के लिए आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लें अभी फिलहाल, और ये समझिए, ये सोचिए या इमेजिन कीजिए कि आपके आपको बहुत भूख लगी है और आपके हाथ में कोई ऐसे औजार नहीं है जो नेचर ने नहीं दिया हुआ हो। नेचर ने हमारे पास क्या क्या औजार दिए हुए हैं? हमारे हाथ पैर, हमारे आंखें, नोज, माउथ, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सब वो टूल्स हैं जो नेचर ने दिया हुआ है। मैन मेड टूल्स है, जो है फायर, जो है कुकिंग के टूल्स, नाइफ, ये कुछ नहीं है आपके पास। नेचर के दिए हुए टूल्स हैं। और आपको बहुत भूख लगी है और एक फार्म में पहुंचते हैं आप। तो वो फार्म में कुछ मैंगोज हैं जो एकदम राइप हैं, रेडी हैं। उसका सुगंध आता है आपके नाक की तरफ। क्या वो आम को देख के आपके मुंह में पानी आएगा? राइट। दूसरा है कि थोड़े वेजिटेबल्स ग्रो हो रहे हैं। हो सकता है कि उनको देख के आपके मुंह में पानी नहीं आए, लेकिन आपको बहुत भूख लगी है और फ्रूट्स नहीं है, तो आप उसको तोड़ के खाने की कोशिश करेंगे। क्या आप उसको तोड़ के खा सकते हैं? तीसरा, वहां पे एक गाय और एक बछड़ा है जो फ्री रोमिंग है, जैसे नेचर ने इंटेंट किया है। वो नहीं है जो हमने इम्प्रेशन करके रखा हुआ है। और वो बछड़ा वो गाय का दूध पी रही है। वो सीन को देख के क्या आपके मुंह में पानी आएगा? और अगर आप उस बछड़े को निकाल के आप अपने आप को वहां लगाने की कोशिश करें, वो गाय क्या करेगी? और वो गाय जो करेगी उससे आपकी क्या हालत होगी? ठीक है। चौथा है, कुछ धान्य उग रहे हैं, जैसे गेहूं है या चावल है। वो उस चावल या गेहूं को देख के क्या आपके मुंह में पानी आएगा? हाँ, आप जाके उसको तोड़ के खा सकते हैं। थोड़ा सा, कितना खा सकते हैं? ओके, यू कैन ऑल ओपन योर आईज, आप आंखें खोल सकते हैं। और आप मुझे इसमें चैट में लिख के बताइए कि क्या आपको आम देख के मुंह में पानी आया, यस और नो? यस, राइट। यस। जब आपने वो सब्जी देखी, क्या आप उसको तोड़ के खा पाए, यस और नो? यस, राइट। यस। और जब आपने वो बछड़े को और गाय को देखा, उसको देख के आपके मुंह में पानी आया कि आपके माइंड में, मन में कंपैशन आया? कंपैशन आया ना, ऐसा लगा कि अच्छा, कितना अच्छा है। मुंह में पानी नहीं आया, राइट या? और जब आपने वो धान्य देखा, क्या तुरंत आपके मुंह में पानी आया? नहीं। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ऐसे इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे भी मजा आता है बात कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है अभी भी है, चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्सिटी बायस में हम फंसे हुए हो, इंस्टिंक्ट तो है। हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि वो बाहर निकले। तो सॉरी, अब ये एक स्टडी ले दिया हुआ है। आजकल तो बहुत सारे हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि जो मीट ईटर है उसका रिस्क 50% है, और जो वेजिटेरियन है उसका रिस्क है 45%, और जो प्लांट बेस्ड है उसका रिस्क है 4%। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड में तो सिर्फ एक ही फर्क है कि वो सिर्फ दूध पीता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना? फिर ऐसा डिफरेंस क्यों है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ये इसलिए है कि आपका जो दूध है उसमें ये चीजें हैं।
केसीन है, कीसोमोर्फिन है, हॉर्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, पस सेल्स है। ये जो दूध आप गाय का या किसी और जानवर का पीते हो, वो दूध मदर नेचर ने बनाया हुआ है उसके बछड़े के लिए, उसके बच्चे के लिए। और वो बच्चा भी, गाय का बच्चा भी कुछ महीनों के बाद वो दूध पीना बंद कर देता है। जैसे हमारी मम्मी का दूध है जो हमारे लिए था, वो भी हम 2 साल की उम्र तक बंद कर देते हैं। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे शरीर में उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। और हम ये जो पी रहे हैं, इसमें जो कीसोमॉर्फिन है, ये एडिक्टिव एजेंट है, जिसकी वजह से हम एडिक्टेड रहते हैं। जब मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, वो बोलते हैं अच्छा मैं तो दूध तो बंद कर सकती हूँ, लेकिन छाछ, चीज, दही, ये कैसे छोड़े? ये इसलिए क्योंकि इस फॉर्म में ये कीसोमॉर्फिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम एडिक्टेड हो जाते हैं। जो केसीन है, ये एनिमल प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एसिडिटी क्रिएट करता है। हॉर्मोन्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे महिलाएं हैं उनको पीसीओडी हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, जैसे मेरे को हुआ था। और एंटीबायोटिक सबसे बड़ी बात है। आजकल बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट निकल रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब आपका डॉक्टर आपको देता है, उसका एक कोर्स होता है। आपको बोला जाता है कि उसको बीच में रोकिएगा नहीं, उसको कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने उसको बीच में रोका, तो वो जो बैक्टीरिया या जो वायरस है या जो अम, अ, कीटाणु है, वो उसको रेसिस्टेंट बन जाता है, उससे स्ट्रांग बन जाता है। फिर आपको अगर फिर से वो डिसीज हो, तो उसको डबल डोसिंग करना पड़ता है। ये जो गाय है जिसका दूध हम पी रहे हैं, वो बहुत सारे अनहाइजीनिक कंडीशन में पाले जाते हैं, तो उनको बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, तो उनको एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है प्रोफाइलैक्टिक की वजह से तरीके से, या तो फिर उसको डिसीज निकालने के लिए। ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये उसके दूध के थ्रू हमारे अंदर आता है, और हमको पता नहीं है कि इसका डोसेज क्या है। सो नेचुरली हम सब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन रहे हैं। दिस इज वन रीजन। ये जो है, ये है असली दूध का कलर। जो दूध हमारे घर में आता है उसको बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है। ये ऐसा कलर क्यों है, ये लाल कलर क्यों है? क्योंकि जो गाय के जो ब्रेस्ट होते हैं, निपल्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो अपने बछड़े का जो सॉफ्ट पैलेट है, उससे स्टिमुलेट होने के लिए बना रहता है। तो जब हम हाथ इस्तेमाल करते हैं या तो फिर हम मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो डेलिकेट स्किन जो है बार बार फटती रहती है, और उसमें इंफेक्शंस होते रहते हैं, उसमें बॉयल्स होते रहते हैं। जब वो दूध निकाला जाता है, स्पेशली फैक्ट्री फार्मिंग में, तो वो उसके साथ पस सेल्स और ब्लड, फ्लैश सब आ जाता है, और ये कलर बनता है। फिर उसको बहुत सारे प्रोसेसिंग किया जाता है, कई बार ब्लीच भी ऐड किया जाता है, और फिर आपके घर में आता है, जिसकी वजह से ये सब डिसीजेस जो हैं आपको हो सकते हैं अगर आपने दूध कंटिन्यू किया तो। कमर्शियल दूध ज्यादा, इवन अगर आप ऑर्गेनिक दूध ले रहे हैं, A2 दूध ले रहे हैं, तो भी वो जो दूध है उसमें कीसोमॉर्फिन है, उसमें हॉर्मोन्स हैं जो वो बछड़े को 2 महीने में एडल्ट बना सकता है। इतना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है। आपका शरीर तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें जब ग्रोथ हार्मोन जाएगा तो किस चीज को ग्रोथ करेगा? मोटापा बढ़ेगा और ट्यूमर्स बढ़ेंगे, ऑटो इम्यून सिस्टम को हॉल्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हम सफर करते रहते हैं। दैट इज व्हाई दिस ह्यूज डिफरेंस। तो अभी हमको पता है कि हमने नॉनवेज नहीं खाना है, एग्स नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, डेयरी भी नहीं खाना है, तो हम क्या खाएं? डेफिनेटली फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स तो हमारे लिए बने हुए ही हैं। और क्या खा सकते हैं? वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड, हमने क्या किया हुआ है, इतने सारे पदार्थ बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी में बिलीव करते हैं, तो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो चलेगा नहीं, तो हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको इम्प्रूव करने लगा। हम डोसा खा सकते हैं, ये सब खाना चाहिए कि नहीं, ये हम नेक्स्ट में बोलेंगे। तो ये सब हो गया है हमारा खाना, और अब यहां तक पहुंच गए हैं कि ये हो गया है हमारा मेन लंच फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली बॉम्बे में।
ये सब हम रोज ही खाने लगे हैं, जो ओकेशनल ट्रीट हुआ करता था। दिस थिंग्स विच आर पैकेटेड, ये हमारे सबके घर में आने लगे हैं। क्या हमने कभी भी इसके पीछे देखा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगर आप सच में देखोगे तो इसमें इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारा ज्यादा केमिकल्स मिलेगा, और बहुत कम मात्रा में जो हम फूड के दौरान आइडेंटिफाई करते हैं वो भी क्या होता है, मोस्टली ग्रेन्स होते हैं। तो हमने खाना क्या है और डिसाइड कैसे करें कि हम क्या खाएं? सब कुछ तो बंद करके एकदम सिर्फ फ्रूट्स तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन क्या ये करना जरूरी है? तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? इसके लिए ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको आज। तो ये है जो आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है, जब एक व्हीट बनता है, जाके जब तक वो आपके प्लेट में बिस्किट के फॉर्म में आता है, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। मैंने 10 डाले हुए, 10 से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं। जबकि आप दूसरे साइड में देखोगे तो देयर इज दिस मैंगो, जो ऑर्गेनिक फार्म में बना हुआ मैंगो है। तो उसमें कितने स्टेप्स हैं? बेसिकली द सिंपलेस्ट वे टू नो कि आपने क्या खाना चाहिए, ये है कि जितना स्टेप्स लिया हुआ है उसने, उसके ओरिजिनल फॉर्म से, फ्रॉम वेयर इट इज क्रिएटेड टू द टाइम इट रीचेस योर प्लेट, the smaller the steps, the better it is for you. The simpler the steps, the better it is for you. This is how you simplify your food. तो मैं सिर्फ ये खाऊंगी, आम खाऊंगी या सिर्फ वेजिटेबल्स खाऊंगी और मैंने कुछ सप्लीमेंट्स नहीं लिए, तो क्या मेरा शरीर ठीक रहेगा? कई बार हम वो कॉम्प्लेक्सिटी में भी फंस जाते हैं कि प्रोटीन इतना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, मिनरल्स इतने चाहिए। क्या बाकी के जो एनिमल्स हैं वो ये सोचते हैं? और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स अभी भी हैं खाने में, जो जो नेचर वाले खाने में है, जो हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, जो लीव्स में है, जो फ्रूट्स में है, अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं। तो हम किस बेसिस पे सोच रहे हैं कि हमको इतना चीज इतना चाहिए? इफ वी बिलीव और जस्ट सिंपली ट्रस्ट मदर नेचर, जो चीजें मदर नेचर ने हमारे लिए बनाई हुई हैं उसको होलसम फॉर्म में खाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट सब हमारे शरीर में मिल जाएगा जो उसके लिए जरूरी है। टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। द complexity, that the problem or the challenge is to bypass our complexity bias। जो माइंड बोलेगा उसको बाईपास करना ज्यादा मुश्किल है। नरिशमेंट लेना बहुत सिंपल है। जस्ट चूज द थिंग्स विच आर मेड फॉर यू इन नेचर इन इट्स होलसम फॉर्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुकिंग भी करने की जरूरत नहीं है। बट यस, वी डोंट हैव टू डू दैट। सो इफ यू आर गोइंग टू ईट प्लांट बेस्ड, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? एक छोटा चम्मच तिल जो है, एक बड़े ग्लास दूध, काउस मिल्क से, दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है उसमें, और खसखस में तो 20 गुना ज्यादा है। तो हमने तो इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। वो छोड़ो, आपको क्या पता था कि ऑरेंज में भी कैल्शियम है? 1 big orange has 60 milligrams of calcium। और फाइनली हमको कैल्शियम चाहिए ही कितना? और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बेसिकली हमारे शरीर को प्रोटीन की नहीं जरूरत है, अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर जो है प्रोटीन अपने आप क्रिएट करता है। हर जानवर या हर स्पीशीज का प्रोटीन जो है, जो इसको कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमको सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड की जरूरत है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर क्रिएट करता है। जब हम एक कंप्लीट प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन या गाय का दूध का प्रोटीन जो लेते हैं, या मिल्क प्रोटीन जो लेते हैं, तो उसमें का जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, दैट्स नॉट नीडेड। इसकी वजह से उसको थ्रू आउट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। एंड दैट्स हाउ आई डेवलप्ड ऑस्टियोमलेशिया, व्हिच इज द स्टार्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। Countries which have a huge consumption of dairy products, they end up having lots of osteoporosis cases.
and countries which have lots of meat products have a lot of colon cancer cases. तो milk जो है, because of the protein which is in it, which is not suited for our body, ends up creating acidity at our blood level. तो अमाइनो एसिड्स जो है वो कंपाउंड्स है जो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और इनमें से 9 है जो एसेंशियल है, और सभी फ्रूट्स में ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. इनफैक्ट एप्पल्स में 90% ऑफ नॉट ओनली एसेंशियल, नॉन एसेंशियल वाले भी होते हैं. सो यू आर नेवर गोइंग टू गो लो ऑन प्रोटीन एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग इनफ. जब आप बिल्कुल नहीं खाते हो, 5 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाओगे, तभी आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी. तो ये जो चीजें हैं इनमें आप देख सकते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 सब है, इनमें भी है, पपाया में भी है, मैंगो में भी है, सब में है. तो as long as you're nourishing yourself with good food, nature given food, simple food, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है. अब जो फ्रूट्स हैं, इसका दूसरा महत्व ये है कि फ्रूट्स ही ऐसा फूड है जो पेड़ चाहता है कि आप खाएं. पके हुए फ्रूट्स क्यों? क्योंकि आप खाओगे तो उसका सीड्स आप कहीं और लाके डालोगे तो इट विल बी प्रोपोगेटेड. So trees want you to eat their ripe fruits. That is why fruits are our best food that is available. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन डी और B12 ये कहाँ से आएगा? बट ट्रस्ट मी, जब भी मैं पेशेंट को लेती हूँ, भले ही वो वेजिटेरियन हो, वीगन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ये 2 ब्लड टेस्ट मैं अवश्य कराती हूँ उनसे. और मेरा अनुभव यह है कि ये सिर्फ वीगन्स में नहीं होता, ये डेफिशिएंसी हर इंसान में है आजकल, विटामिन डी और B12. क्यों डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि जो डी है ये आता है सूरज से. विटामिन डी आपका शरीर, आपका स्किन बनाता है. इट इज अ हार्मोन दैट योर स्किन क्रिएट्स व्हेन इट गेट्स गुड क्वालिटी सनलाइट. लेकिन आजकल के जमाने में हमको काला नहीं होना है तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, तो हमारा स्किन कहाँ से वो क्रिएट कर पाता है? हम इंडोर्स रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो कहाँ से वो आता है? इनफैक्ट मेरे पास 2 लेबरर्स ऐसे आए थे जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी. वो तो मतलब बिना शर्ट के काम करते हैं रोड पे, फिर भी उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों थी? क्यों? क्योंकि जो ये शहर है उसमें बहुत सारा पोल्यूशन है. कई बार जो क्वालिटी ऑफ विटामिन डी आता है आपके पास, आपके स्किन के कांटेक्ट में, वो हाई क्वालिटी नहीं होता. इट इज फिल्टर्ड थ्रू द पोल्यूटेंट्स. तो विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो क्लीन एयर में, क्लीन वातावरण में आप जाके दिन में 20 मिनट्स खड़े रहिए, आपको मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा है B12. B12 आता है बैक्टीरिया से. जितना हम एंटीबैक्टीरियल चीजें यूज करेंगे, जितना एंटीसेप्टिक चीजें यूज करेंगे, उतना हम अपने हेल्दी बैक्टीरिया को खराब कर रहे हैं. हमारे शरीर में, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो B12 क्रिएट करते हैं. लेकिन जितना आप केमिकल्स खाओगे, प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स और फ्लेवरेंट्स, जो केमिकल्स हैं, वो उनको मारता है और अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपका प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं, आपका गट में इश्यूज होने लगते हैं. सेकेंड, आपका B12 भी कम होने लगता है. जब आप आपके खाने को क्लीन आउट कर देते हो तभी आपका B12 नॉर्मल हो जाता है. लेकिन अगर आपका ब्लड टेस्ट में B12 और D के लेवल बहुत कम है, शॉर्ट टर्म के लिए तो कम से कम आपको उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके खाने से नहीं मिलता हो. ये 2 ही ऐसी चीजें जो खाने से नहीं मिलते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है. और हम अगर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, चांसेस है कि आपके पास इन दोनों की डेफिशिएंसी हो. So this is simplifying nourishment. How do you simplify it? Choose human food, जो इंसानों के लिए बना हुआ है. That means plant based. इसमें कोई भी animal based product नहीं होता. दूसरा, जितना स्टेप्स हैं वो जितना कम होगा उतना आपका हेल्थ बेटर होगा. थर्ड है होलसम. अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट खाइए, उसका जूस मत पीजिए. जितना होलसम है उतना होलसम रखिए. अगर आप राइस खा रहे हैं तो ब्राउन राइस खाइए, व्हाइट राइस मत खाइए. व्हीट खा रहे हैं तो होल व्हीट खाइए, उसका मैदा मत खाइए.
as close to its natural form. आप जितना उसको कुकिंग करेंगे, जितना उसको बेकिंग करेंगे, फ्राइंग करेंगे, उतना उसमें का जो लाइफ है वो निकल जाता है, फिर आपके फायदे का नहीं होता, वो हेवीनेस क्रिएट करता है, बर्डन क्रिएट करता है। तो जितना क्लोज टू नेचुरल फॉर्म एज पॉसिबल। द नेक्स्ट इज, अगर हो सके तो आप ऑर्गेनिक खाइएगा, जो जिसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह नेचुरल हो, ताकि इट डजंट गो इनटू योर बॉडी। The next one, this is also very important, is just because it is lunch time, खाने की जरूरत नहीं है अगर आपको भूख नहीं है तो ये ऐसा होना चाहिए आपका प्लेट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी रॉ सैलड का होना चाहिए जिसमें कोई भी कुक्ड एलिमेंट नहीं हो। Second biggest quantity of vegetables lightly cooked with little oil. Next quantity, if at all required, of dal, whole dal without oil. And if at all there is space left in the plate, only then have whole grains. Otherwise, if you are satisfied with just 1, 2, 3, बस उतना ही खाइएगा, आपको सब नरिशमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आई एम जस्ट रशिंग थ्रू movements. I would want all of you to just stand up right now, look at the screen, और ये जो 7 बेसिक मूवमेंट्स हैं, आप कोशिश कीजिए। स्क्वाट करने की कोशिश कीजिए, लंच करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है पुश, पुश। नेक्स्ट है पुल, बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड रनिंग और वॉकिंग। अब मुझे चैट में बताइए कि क्या आप इनमें से 7 मूवमेंट कर पाए? Yes, very good. I'll be talking more about B12 later. You can put it in the comments on the Facebook Live. I will do that. Yes. So these are the basic movements. ये जो बेसिक मूवमेंट्स हैं, ये हमारे शरीर को रोज करने चाहिए, लेकिन हम आजकल कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा करते हैं? यही एक मूवमेंट होता है ना? अभी भी फिलहाल हम ऐसे बैठे हैं। दिस इज द वर्स्ट मूवमेंट फॉर अ बॉडी, दिस इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर अ बॉडी। तो अगर आपको एक्सरसाइज करना है या हेल्थी रहना है, तो ये जो 7 मूवमेंट्स है ये इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाएं या एक्सपेंसिव कुछ करें, ये सिंपल चीजें कीजिए, जहां पे हो सके आप चलिए। मैं मुलुंड में रहती हूँ और जब भी जो भी चीजें मुलुंड में हैं उनमें वहां मैं चल के जाती हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉक वेर एवर यू कैन। तो एक मूवमेंट तो कवर हो ही जाता है। सेकेंड है कि अगर आप योगा करते हैं तो थोड़ा टाइम आप योगा छोड़ के जिम का एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए, या तो चिगोंग कीजिए या तो जुम्बा कीजिए। मिक्स इट अप, क्योंकि आपका शरीर एक तरह से कंफर्ट जोन में चला जाता है, उसको निकालना पड़ता है ताकि दूसरे मूवमेंट्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो। नेक्स्ट है, जितना हो सके स्टेप्स चढ़िए, उतरिएगा नहीं। अगर आपका नीज वीक है तो उतरना कभी नहीं चाहिए, चढ़िएगा। चढ़ने से आपके जो थाई मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। जब आप उतरते हैं और आपके थाई मसल स्ट्रांग नहीं है तो आपके हड्डियों पे लगती है, एंड दैट कैन इंजोर योर नीज। चढ़ने में तकलीफ होती है, लेकिन उसकी वजह से आपके मसल्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? म्यूजिक लगाइए, डांस कीजिए, भजन लगाइए, उसमें स्विंग कीजिए। दैट विल बी सो रिफ्रेशिंग फॉर योर बॉडी। नेचर इज द बेस्ट हीलर। जितना हो सके नेचर में जाइए, उसमें चलिए। अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो ये सब 7 मूवमेंट्स उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। आपको बेंड करना ही पड़ता है, आपको पुल करना ही पड़ता है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। At least once in a month, try to get into nature and do some kind of stretching. अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी हाफ एन आवर उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा बेंड कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। आपका स्पाइन, आपका नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा। दिस कैन कीप यू हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनदर थिंग, जैसे हम इंडियंस पहले खाया करते थे, नीचे बैठिए, नीचे बैठ के खाना खाइए। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स है वो सप्पल रहते हैं।
हाँ, अगर हमको आदत हो गई है, हम नहीं कर पा रहे हैं, सो डेवलप इट स्लोली। एटलीस्ट फॉर द यंगस्टर्स आदत लगाइए कि वो नीचे बैठ के खाएं। नेक्स्ट इज इंडियन टॉयलेट। अगर आपके नीज ऑलरेडी घिस चुके हैं, आप इंडियन टॉयलेट नहीं यूज कर सकते, एक स्टूल मिलता है जो आप टॉयलेट के साइड में रख सकते हो और उसके ऊपर अपने पैर रखिए, ताकि वो मूवमेंट मिल जाए, ताकि आपका बावल इवैक्यूएशन अच्छे से हो। But using the Indian toilet is the best thing that you can do, not just for your bowels, but also for your joints. The next part, the third part of our series is contentment, happiness. Right now, we are just so engrossed. हम मल्टीटास्किंग को एक वर्च्यू समझ चुके हैं। हमको लगता है कि जितना एक मोमेंट में मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो सब करें तो मैं सुपर हीरो हूँ। बट दिस इज नॉट सुपर हीरोनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सिटी बायस। सबसे मुश्किल बात है एक चीज पे फोकस करना। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो जानते हैं कि आपको बोला जाता है आप ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, आप कितना ब्रेथ पे ध्यान दे पाते हैं? तुरंत 1 मिनट होता नहीं है कि दूसरे थॉट्स आने लगते हैं। फिर अरे मेरी बाई आने वाली है, मेरा बच्चा ये बोल रहा होगा, आई हैव पुट समथिंग ऑन द स्टव, थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप, और माय बॉस सेड समथिंग, आई हैव अ डेडलाइन, ये सब चीजें आने लगती हैं। सो इट इज सो डिफिकल्ट टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। दैट इज बिकॉज वी हैव मेड इट अ हैबिट इतने सारे चीजें करना, और उसको एक वर्च्यू का धब्बा दे चुके हैं। हम समझते हैं कि जितना हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकते हैं उतना हम स्ट्रांग हैं। इसको तोड़ना है, इसको अनलर्न करना है, इफ वी हैव टू लीड अ हेल्दी लाइफ। तो कंटेंटमेंट के लिए क्या स्टेप्स कर सकते हैं? पहले, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर रोज दिन खत्म होने से पहले थोड़ा 1 मोमेंट लीजिए और सोचिए कि आज के दिन में क्या चीजें हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल आभारी हूँ। तो छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, बड़ी भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज होनी चाहिए। आज की चीजें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इफ नीडेड। दिस कैन गो अ लॉन्ग वे टू स्लो यू डाउन एंड फाइंड कंटेंटमेंट। Another major thing that can help you is breaking the buying habit. ये जरूरी क्यों है? हम हर बार नए कपड़े खरीदते हैं, कई बार हम समझते नहीं हैं कि क्या कपड़े खरीद रहे हैं। नायलॉन के कपड़े खरीदते हैं। डू यू नो दैट ऑल द सिंथेटिक फैब्रिक्स जो हैं, इवन द आर्टिफिशियल सिल्क भी जो है, दीज ऑल आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये प्लास्टिक डेरिवेटिव हैं। और ये जो क्लॉथ है, आई वॉज पार्ट ऑफ अ माइक्रो फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली। जब हम डिग कर रहे थे तो पता चला कि बहुत अंदर पुराने कपड़े पड़े हुए हैं जो कभी डीजेनरेट हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक है। और ये जो अगर अर्थ का हालत है, इसमें अगर हम धान्य उगाएंगे या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाएंगे, उसमें कितना नरिशमेंट होगा। ये शुरुआत कहाँ से होता है? हमारे बाइंग हैबिट से। जितना हम खरीदेंगे, आजकल तो मिनिमलिज्म का फैड चल रहा है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे हाथ में 5 ही कपड़े होने चाहिए, लेकिन हर महीने हम 5 कपड़े खरीदते रहेंगे तो पुराने 5 कपड़ों का क्या होगा? हम किसी और को देते हैं, वो कई बार इमीडिएटली 2 दिन यूज करता है, फिर कचरे के डब्बे में डालता है, वो जाता है डंपिंग यार्ड में, और वो जाता है हमारे, या तो हमारे ओशन में या तो हमारे अर्थ के अंदर। तो एक, जो भी चीजें आपके पास हो उसको जितना हो सके संभाल के यूज कीजिए, जितना लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं यूज कीजिए। सेकंड, अगर खरीदना ही है, इवन इन द मेकिंग प्रोसेस देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गोइंग, बट खरीदते वक्त ऐसी चीजें खरीदिए जो डीजेनरेट हो सके। फैब्रिक्स, buy earth friendly fabrics like khadi, linen, bamboo fabrics, hemp fabrics. आपके सभी बाइंग हैबिट्स में ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। जितना आप कॉन्शियसली बाय करेंगे, आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा खरीदने की जरूरत ही नहीं है आपको। दैट विल ब्रिंग कंटेंटमेंट इन योर लाइफ। अदरवाइज यू विल फील डिप्राइव्ड। अगर आपका बाइंग कैपेसिटी इतना होता है और आप उसमें खरीदते हैं, किसी और के लिए बाइंग कैपेसिटी इतना होता है, लेकिन देयर विल बी अ थर्ड पर्सन हुज बाइंग कैपेसिटी इज दिस मच, और जब आप वो देखोगे जितना भी आपने बाय किया हो, आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा। फिर आप वो रैट रेस में वापस चले जाएंगे।
When you find that buying less comes with a virtue attached to it, you are helping the planet, you are helping this other species by buying less, you will feel more content in being where you are. Next one is thinking of the higher impact of your choices. एंड दिस इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट वन. हम जो भी चीजें नेचर में देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या होता है, अच्छा ये प्लांट उग रहा है, इसका फूल बहुत अच्छा है, इसको मैंने अपने बगीचे में लाके रखना है. वी ऑलवेज आर इन द डूइंग मोड. क्या करना है आगे, क्या करना है, अभी ये चीज है, नेचर में है, क्या हम उसको ऐसे ही देख के सिर्फ उसको एंजॉय कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट? Right? That is called being without wanting to change anything, just sitting with what is. At least once in a while, दिन में कम से कम 5 मिनट कुछ न किए हुए, कुछ चेंज करने का थॉट भी न लाए हुए बैठने की कोशिश कीजिए. That can create great contentment. Focus on the experience, not on things. अगर आपको अपने आप को जैसे अभी मैं तो सिर्फ रॉ फूड खाती हूँ 2016 से. तो कई बार मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपके बर्थडे में आपको सब केक कटिंग करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, आपको खाने का मन नहीं करता? लेकिन मेरे लिए जैसे मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ का जो फेमस पानी पूरी है या चाट है, ये नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ पे नेचर कैसा है. एंड आई फोकस मोर ऑन दैट एक्सपीरियंस. जब आप किसी से मिलते हैं या इवन आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बाइंग करने की जरूरत नहीं है, वहां इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, हर इंसान जो है एक लाइब्रेरी है, उसका एक कहानी होता है. उसको सिर्फ देखने से, उसके आमने सामने रहने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है. उस पे ध्यान दीजिए, नॉट ऑन थिंग्स, एंड यू विल फाइंड सो मच मोर कंटेंटमेंट. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार कंटेंटमेंट डज नॉट मीन कंप्लेसेंसी. कंप्लेसेंसी मतलब मुझे पसंद नहीं है जो मेरे आसपास है, लेकिन मैं बदल नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे बदलना भी नहीं है. ये नहीं है. कंटेंटमेंट इज बीइंग रियली हैप्पी एंड satisfied with what is, and there will be something that you can change to create what you need in that without too much of change. That is contentment. So just understand this little bit of thing. Contentment does not mean complacency. The next part is connections. Like I said, we are interconnected beings. हम सिर्फ इंसानों से connected नहीं है, सभी चीजों से connected हैं. तो हम ये कनेक्शन जो बिगड़ चुके हैं, अगर जब हम इंसानों से भी मिलते हैं, कोई एजेंडा के साथ मिलते हैं कि हम ये पार्टी में गए, इतने लोगों से मिले तो मेरे बिजनेस के लिए ये हेल्प होगा, मेरे को इतना फायदा होगा इससे, तो क्या होता है कि वो कनेक्शन प्योर नहीं होता, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है आपके लाइफ में. तो इसको अनडू कैसे करें? सबसे पहले रिकनेक्ट विद नेचर विदाउट ट्राइंग टू रेगुलेट. जैसे मैंने कहा, अभी जैसे कुछ पेड़ उग रहा है, उसमें कुछ लीव्स जो हैं सूखे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपका मन बोलेगा कि अरे वो सूखे जो पत्ते हैं उसको निकाल लेते हैं, उसके नीचे जो पत्ते पड़े हुए उसको सरका लेते हैं. दिस इज ट्राइंग टू रेगुलेट, ट्राइंग टू कंट्रोल, ट्राइंग टू चेंज. when you are in the mode of reconnection with nature, just be with nature. Don't try to regulate. That will reconnect you with nature. The second is connect with people with similar interests. ताकि आप जो अभी सोच रहे हैं, आप जो अभी हम इस इतने ग्रुप में हैं, कई लोग इस टॉक से कनेक्ट कर चुके हैं. कई लोगों को जब आप बाहर जाके ये बोलोगे, वो बोलेंगे कि यार क्या बकवास है. तो क्या होगा कि आपने जो भी अभी सोचा कि ये सही है, तुरंत आपका थॉट जो है अंडू हो जाएगा. तो जो लोग आपको जो जहां जाना है, आप जो पाथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पाथ पे चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन रखना बहुत जरूरी होता है. तभी आपका जो भी पाथ है
वो करेक्ट चलता रहेगा, नहीं तो आप इधर उधर चलते रहोगे. So connect with people with similar interest, otherwise it starts becoming heavy. खाना जो है हम सब चीजों में फ्रेंड से मीट करते हैं, कॉफी पे मीट करते हैं, या तो फिर पार्टी होता है, पार्टी में खाना मेन इंपॉर्टेंट होता है. इसको जरा साइड में रखें और सोचिए कि और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फ्रेंड से मिलना है, कॉफी शॉप में मिलने की क्या जरूरत है, आप पार्क में जाके मिल सकते हैं, आप एक हाइक पे जा सकते हैं, तब मिल सकते हैं. तो उनको मीटिंग्स के लिए आप अलग तरीके सोचिए कि मैं इसको चेंज कैसे करूं. सब खाने पे जरूरी नहीं है फोकस करना, क्योंकि कई बार जो खाना आप ऐसे मीटिंग्स में खाते हैं, दैट इज द वर्स्ट फूड दैट यू कैन गिव टू योर बॉडी. सो खाना रहेगा वहां पे, चलेगा, मगर आप ध्यान दीजिए कनेक्शन पे. ओके. एंड सब सोशल ओकेशन, आपको 4 इनविटेशन आए होंगे एक दिन के लिए, जरूरी नहीं है कि सब में जाएं. आप चूज कीजिए, और जब आप चूज करेंगे तब आप वहां पे 100% प्रेजेंट रहेंगे. वरना आपका माइंड चलता रहेगा कि अच्छा इसके बाद मुझे वहां जाना है, इसके बाद वहां जाना है. और कई बार इसके वजह से आप अपने बाउंड्रीज लूज कर देते हैं और आप टेंशन में हो जाते हो. और जब आप टेंशन में हो जाते हो, स्ट्रेस में हो जाते हो, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. When your adrenaline glands get exhausted, your hormone system starts getting exhausted. Your immunity goes for a toss. So, social commitment should be something that you like to do. If you are an introvert, जरूरी नहीं है कि extrovert की तरह behave करें. आपको अगर बाहर जाना पसंद नहीं है और थोड़े कनेक्शन से, that is who you are. उसी में आपकी शांति है, उसी में आपकी खुशी है. जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही जैसा हो. So choose the commitments that you really want to go and learn to draw your boundaries, healthy boundaries. Of course, there's lots to talk about boundaries, but for some other time. Meeting the person in person without agenda, without thinking कि ये मेरे को देगा क्या, बस क्योंकि वो इंसान है, उसका कंपनी मुझे पसंद है, इसीलिए मिलना, ये बहुत जरूरी है. जो भी आपके पास है उसको अबंडेंटली शेयर कीजिए. आपके पास किसी चीज की नॉलेज है तो फ्रीली शेयर कीजिए. यहाँ पे हमने कंपटीशन का माहौल बना के रखा हुआ है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. कंट्रीब्यूशन का माहौल बनाते हैं. जो मेरे पास है, अगर मेरे पेड़ में बहुत सारे आम हैं, उसको सब तो मैं खा नहीं सकती हूँ, तो मैं अपने नेबर्स को दे दूं. अगर मेरे पास कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो जिसको जरूरत है उसको दे दूं. यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है आजकल, स्वैपिंग का. आपके पास कोई चीज है जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको किसी और को दे सकते हैं. राइट नाउ द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, ये जो है ये मेरे फ्रेंड से स्वैप किया हुआ है. उसके पास ये 3 से 4 साल से था, वो पहन चुकी थी और उसको पसंद नहीं था, तो मेरा टॉप मैंने उसको दे दिया. उसके लिए वो ब्रांड न्यू है, मेरे लिए ये ब्रांड न्यू है. दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय कि मैं सेम कपड़े नहीं पहन रही हूँ, बट आई एम नॉट एडिंग टू द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड. तो जो आपके पास एबंडेंट है उसको शेयर कीजिए. बाकी क्या चीज है उसको देखिए, शेयर कीजिए. शेयरिंग कैन गिव यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कनेक्शन. एंड व्हेन यू नीड हेल्प, सीक हेल्प. कई बार हम अपने ईगो को लाते हैं और हम हेल्प के लिए हाथ नहीं ये कर पाते, एक्सटेंड कर पाते हैं. सीक हेल्प. That is very, very important if you want to create healthy connections. If all of this looks too much, बहुत ये सब बहुत हो गया, बहुत बकवास हो गया, मैंने तो शुरू किया था सिंप्लीफाइंग लाइफ बोल के और मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया. डरिएगा नहीं, यहाँ पे भी आप ये सब कर सकते हैं. जहां पे भी हो आप, जो भी हो आप, सिर्फ यहाँ पे आप लव और कंपैशन अपने माइंड में, अपने हृदय में उगाने की कोशिश कीजिए. सिर्फ यही बहुत है. उसमें से ये जो मैंने अभी स्टेप्स बताए वो अपने आप उभरेंगे, उसमें इट विल ब्लूम फ्रॉम देयर. सो जस्ट बी वेयर यू आर, बी इन कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू आर एट द स्टेज ऑफ द जर्नी दैट यू आर, और कंपैशन को निकालिए, ना सिर्फ अपनी तरफ बट
also towards other human beings, towards other animals, towards the planet, towards the trees, towards the plant. Let it expand and simply be. Simple, right? So these are some testimonials of my patients. And I think we are already out of time, so I will just let you go through it. Just following a simple life, your diseases can get reversed. And yes, I don't give medicines, but I teach. I don't treat, I teach. So as long as you follow to the extent that you are able to, even my teachings have to be taken with a grain of disbelief, because what is true for me might not be true for you. You can follow it and you have to create your own path. I am there as a guide. I'm not there to walk the path for you. That's all from me. Thank you so much. If there are any questions, do we have time for questions, Sangeeta? Yes, of course. We Yeah. will take all and every question. Sure. So thank you so much, Dr. Rashmi. It was an eye-opening and a truly inspiring session, and you simplified a lot of things for us. So with this, I'll open it up for questions. आप में से जो भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो just raise your hand and then you can unmute yourself or we will unmute you. There was a question by the time people raised their hand. There was a question on B12. If you like to answer that, Dr. Rashmi. Yeah. So like I said in the presentation, B12 जो है माइक्रोब से बनता है. तो अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, स्पेशली रॉ फॉर्म में, उनमें जो फाइबर है वो ये जो बैक्टीरिया है उनका फूड है. जब हम वो ज्यादा खाते हैं तो वो जो नेचुरली आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उसके लिए खाना मिलता है, फिर वो रिकोलोनाइज होने लगते हैं. बट व्हेन यू ईट रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे डोंट गेट द फूड दैट इज रिक्वायर्ड. सो देन दैट्स हाउ यू बिकम B12 डेफिशिएंट. लेकिन जब आपका लेवल बहुत कम है तो आपको आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, क्योंकि रैंडमली खाना इट्स नॉट एडवाइसेबल. So basically, B12 comes from the bacteria, from the mud. And if you eat a lot of fruits and vegetables in its raw form, you will create the bacteria in your abdomen, in your intestines. Yes. Got it. लीना जी, I think आपका एक क्वेश्चन था शायद. हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? Yeah, see, regarding this B12 and D, my personal experience tells me that most of the people where I find B12 deficiency or vitamin D deficiency, I don't find any clinical signs and symptoms. You know, it is just a laboratory diagnosis that the person has got low vitamin B12 or vitamin D. So I Yes. think this standardization is probably much higher for our country. Out of 100 people, if I find 80 people having low D2, that means, you know, that should be the standard, not the Western standard which is given to us. Absolutely. Absolutely. One study which we did recently at Sumantip University, Mhm. people who were fasting, see, in Jainism, in Jain tradition, we fast for 9 days, we fast for 1 month and all that. Yeah. I mean, one very amazing finding which we had, that in all these cases, the vitamin B12 went up. Yes. Really, I would have expected that the vitamin B12 should come down. Instead of that, during fasting, the vitamin B12 went up. I think that it is because of the gut organ, which gets stabilized because of the Yes. fasting, where you are not putting a lot of toxins in our body. So this is something which is going to be, you know, very amazing research which we are doing at our center. So I think there are a lot of misconceptions which are given. I'll give a very simple example. There is a person who comes to me and says that, see, doctor, I've got B12 deficiency. And then I give him some, you know, some B12 tablets or injection and he feels satisfied. Ideally, I think it was not necessary. Yeah. In certain situations, you can't do anything, because if you don't give him B12, he feels that, you know, he's undertreated or not treated. So this is all pharmacy gimmick, which is probably going on. And as you rightly mentioned, the simple food,
simple exercise, sunlight, right kind of exercises basically is very important. Unfortunately, we people are learning all this at late in life. And by that time, a lot of damages have occurred. I think my case is typical of that. That I was after my profession, after my money, after my social work. So I never cared for my body, especially my health. And obviously, not that I'm sick person, but yes, a lot of things I would have taken care at right time. So people who are here, who are young, start this as early as possible. Don't think that okay, you grow old and then you start doing exercises or you start eating sattvic food and all that. Do as early as possible. This would be some advice which I would like to give to the listeners. A little bit I would like to add to it, but your body is being, every cell in your body is being renewed. So it's like who you were 2 years back is not who you are today. Each cell has been renewed. So there's no age or there's no situation. Any time in your life, if you choose to change, within 2 years, there will be change happening. So it's never too late to change. And my B12 experience is that when I started eating raw in 2016, till then, when I was whole food plant-based, I became vegan in 2010. And 2013, I started eating whole food plant-based. When I started eating raw, I stopped taking the supplements. And I saw that my levels were normal. But when it became, when the lockdown started and I couldn't go out and all that, I could see that I'm getting emotionally a little bit upset and a little not there in my body. That's when I checked my vitamin D and I found that it is low. So now this is my symptom. And what I have experienced in my patients is that everybody's symptom is different. There is no, especially when it comes to B12 and D3, there is no one particular area that, okay, this will be the same symptom for everyone. If you're connected with your body will tell you. And you don't need to randomly supplement, And like I said, the more you eat raw, and like you rightly said, I have done 100 hours of dry fasting, and I felt the best then, in spite of whatever your medical wisdom says. I think fasting is excellent because I have survived 100 hours without a drop of water, without any food, and I felt excellent, So, but of course, it's a mind game. So that's where the mind comes into play. It's never the body. So true. I think Prachi ji had raised her hand. Maybe she had some follow-on questions relating to B12. Prachi ji, Yeah, any specific Yeah. food for B12, right? Yeah. Okay, so usually the fermented foods do help, but like I said, we all have that bacteria in the body. The thing is, we are focusing on what to put in. The focus should be on what to remove. If we remove the things which are going to harm the healthy bacteria, which is there in our body, then we are healthy. So always focus on, if I am deficient of something, what do I need to eliminate, not what I need to put in. Okay. So elimination, all refined products, and as much as possible among the cooked food, lessen the grains, and then naturally you will increase the raw food, and that's all you need. Does that answer your question? Yeah. Yes. Thank you. any more questions? Questions, thoughts? Anybody want to say something? Okay. Yeah. If there are no more questions, then we'll move towards closure of the session. So, Dr. Rashmi, it was an excellent, truly inspiring session. And I think true to the topic, you really made it simple with your four-pronged approach on nourishment, movement, contentment, and connections. So I really liked it, the way you simplified it and made it easy for us to kind of focus on these four broad areas, and also in terms of prioritizing it, right? Starting with nourishment, movement, contentment, and connection. I mean, I wouldn't say it's prioritizing, all are equally important, but yes,
I mean, everything starts with nourishment, right? If you're nourished, if you're healthy, then you're able to do everything else. Otherwise, everything stops at that. And in each of those also, how to identify, कैसे identify किया जाए, क्या है right nourishment हमारे लिए, वो जो simple steps जो आपने बताए, so it's not prescriptive, right? You've given us the guidance on how to identify. Similarly, even on movements, the 7 movements, or it is just about moving, right? Rather than just sitting, what we are doing right now, as you said. Even things like contentment, gratitude, breaking the buying habits, and so on. I think आपने हमारे लिए बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, which we do it in day-to-day life, but we tend to ignore a lot of it. We do it at a small level, but बहुत सारी चीजें जो हम ignore कर लेते हैं. But यदि उन छोटी चीजों पे यदि focus करें, तो how life can change. And towards the end, as you mentioned, यदि हम ये सब कुछ याद भी नहीं रख पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब यदि हमारे दिल में लव एंड कंपैशन है एक दूसरे के लिए, सारे आई मीन all people that we interact with, चाहे हमारे relatives हो या friends हो या हमारे helpers हो या कोई भी हो, I mean, as long as we have love and compassion towards other human being, and as long as we have love and compassion towards other living beings, everything actually falls in place on its own. हमें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारी इस एक्शन से इस बीइंग पे क्या असर पड़ेगा, हमारे फ्रेंड पे क्या असर पड़ेगा, या शायद आई मीन यदि हम दूध ले रहे हैं तो काऊ पे क्या असर पड़ेगा, या यदि कुछ और खा रहे हैं तो दूसरे एनिमल्स पे या फिर अर्थ पे क्या असर पड़ेगा. सो वेरी वेरी सिंपल फ्रेमवर्क जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एंड आई एम श्योर एवरीवन हियर लाइक दैट. लॉट ऑफ पीपल गेव फीडबैक that they really found your sessions to be eye-opener and truly inspiring. So thank you so much for your time with us. It was a great learning. As I said, there are few people who joined today, but there are a lot of people who are going to watch it later. It will be available on YouTube tomorrow. It was live on Facebook today, and people tend to watch at their convenience, right? I'm sure they'll all benefit from the knowledge and the framework that you've shared. So thank you for your time. Thank you, Thank you everybody. so much. Thank you, everyone. Thank you, Sangeeta. Thank you. Thank you. Excellent. I mean, everyone really liked it. So thank you, Dr. Rashmi. I think it was a great job. And I'm sure we'll connect again, and hopefully we'll do something together. So Definitely. audience, thank you so much for joining, and we'll be back again next month with another session. Thank you. So with this, I'll close the bridge. Thank you.